ایک انسان نہ کوئی کانٹینٹ بنا رہا ہے, نہ ایکٹنگ, نہ سنگنگ, نہ کوئی کسی قسم کا ٹیلنٹ نہیں ہے, تو بغیر ٹیلنٹ کے ایوارڈ کیوں ملا؟ کہ ایک انسان کو ملا اس میں کوئی خوبی تو ہو. جو صرف ٹک ٹاکر ہے جو لپ سنگ کر رہا ہے, اس کا کیا کانٹینٹ ہے؟ السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست خبریں ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم ایک ایسی خبر کے بارے میں بات کریں گے جس خبر کو یقین کریں بیان کرتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے غزہ کے جو حالات ہیں, وہاں پر مظلوم بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, وہاں کے مظلوم لوگوں کے ساتھ, نہتے لوگوں کے ساتھ جو ستم کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان پر بمباری کی جا رہی ہے, ہم مسلمان پاکستان میں 10,000 بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کر احتجاج نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھا جائے جن کا اسلام سے, دین سے کوئی تعلق نہیں, یعنی کہ انگلینڈ کے لوگ, انہوں نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا جس میں 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہماری مسلمان کنٹریز میں 10,000 لوگ بھی ایک ٹائم میں جمع ہو کر احتجاج نہیں کر سکے. لیکن وہ لوگ جن کا تعلق نہ تو اسلام سے نہ دین سے, انسانیت کے خاطر انہوں نے 10 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیا. اور ہمارے جو عرب کے لوگ ہیں, جو شہزادے ہیں, جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں, وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ ان حالات میں احتجاج کرنے کی بجائے سعودیہ کے شہر جدہ میں ایک ایسا فیسٹیول انہوں نے منایا جہاں پر انہوں نے پوری دنیا کے بڑے بڑے فلم سٹارز کو بلایا, اور اس کے بعد بالی ووڈ, ہالی ووڈ کے انگریز, گورے, جتنے بھی لوگ تھے, اور ساتھ میں ہماری پاکستانی ایکٹریس بھی ایسے لباس میں وہاں پہنچی جسے دیکھ کر یقین جانے مجھے شرم آ رہی تھی. ماہرہ خان, ہمایوں سعید اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہاں پر موجود تھے, لیکن ان کا لباس دیکھنے کے بعد آپ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے. اور ان عرب کے لوگوں کو, ان عرب کے شہزادوں کو اس چیز کی غیرت ہی نہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے مسلمانوں کے مظلوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ وہاں پر ریڈ سی فلم فیسٹیول منا رہے ہیں جدہ میں. آپ سوچیں کہ اتنا بڑا فیسٹیول منایا جا رہا ہے صرف کس لیے کہ وہ سعودیہ کو دبئی جیسا بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی میں برابر ہوں اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جن کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا, چاہے وہ ہمارے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بلا کر وہ بڑا فیسٹیول کرواتے ہیں. اور انہی عرب کے سنگ دل لوگوں کے ساتھ ساتھ ہماری پاکستانی ایکٹریس ماہرہ خان بھی وہاں پر گئی اور اس لباس میں گئی. اور وہاں جانے کے بعد جب ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی. تنقید ان پر کیا کرنی بھائی, تنقید تو ان پر کرنی چاہیے جو مسلمان ہوتے ہوئے وہ چاہے تو دنیا میں کسی کا بھی تیل بند کر کے اس کو رونے پر مجبور کر دیں, لیکن کیا کریں, دنیا میں ترقی کرنی ہے نا. مسلمان چاہے بھاڑ میں جائے, جو مرضی ہو جائے ان کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ. ہم نے تو بزنس کرنا ہے, ہم نے تو فنکاروں کو سعودیہ میں اکٹھا کرنا ہے, کیونکہ ہم سعودیہ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی غزہ کے لوگوں کے لیے محبت یا احساس ہوگا, وہ اس طرح سے جب بھی کسی کو دیکھے گا تو اس کو دکھ ضرور ہوگا. یہ عرب کے لوگ کر رہے ہیں اور اس چیزوں کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اور ساتھ میں ماہرہ خان کا لباس دیکھنے کے بعد تو اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے. اگر آج غزہ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کل یاد رکھیں, کل کو وہ اٹھتا ہوا دھواں ہم اپنے ملک میں بھی محسوس کریں گے, وہ چیخو پکار ہم اپنے ملک میں بھی محسوس کریں گے, کیونکہ ہم سب اکیلے ہیں. ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے, لیکن وہ سب ایک جگہ ہیں اور ایک ساتھ ہیں. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف. اس خبر کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. عائزہ خان ڈرامہ سیریل جانے جہان کی شوٹنگ کے دوران ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گئی. اگر وہ حادثہ ہو جاتا تو یقیناً عائزہ خان کی زندگی میں بہت بڑی مصیبت آ جانی تھی. عائزہ خان بہت بڑی تکلیف میں پھنس جانی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان نے آج سے 10 سال پہلے ایک ڈرامہ کیا تھا جس کا نام تھا پیارے افضل. اس ڈرامے کے بعد حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان کی زندگی, کیریئر سب کچھ بدل کے رہ گیا تھا. اور آج 10 سال کے بعد وہ ایک بار پھر سے ARY کے ڈرامے جانے جہاں میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, اور آپ لوگ اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں. لیکن ہوتا یوں رہا ہے آج سے پہلے کہ ہیروئن کبھی بھی کسی بھی جگہ پر مصیبت میں ہوتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, پریشانی میں ہوتی ہے یا گرنے لگی ہوتی ہے تو ہیرو بچاتا ہے. لیکن اس ڈرامے میں ہسٹری بدل گئی ہے, اور اسی ڈرامے میں وہ سین کرتے ہوئے عائزہ خان کو لگنے لگی تھی آگ. عائزہ خان کو اگر آگ لگ جاتی تو یقین جانے کہ عائزہ خان کا بچنا بہت مشکل ہوتا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ حمزہ علی عباسی دکھوں اور غموں سے چور کسی دربار پر بیٹھے ہوتے ہیں اور قریب میں ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے. اس چراغ سے ان کی شال کو آگ لگ جاتی ہے. عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ لڑکی غموں سے چور آ کر کسی جگہ پر بیٹھتی ہے اور اس کی چادر
चादर या फिर दुपट्टे को आग लग जाती है और हीरो भागता हुआ आता है और उसको बचाता है। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री बदल कर रहेगी भाई, चेंज कर दिया। इस दफा लड़की देखती है, यानी कि आयजा खान देखती है कि हीरो की चादर को आग लग गई और वो चादर उठाकर फेंकने लगी होती है। ये सीन शूट करते हुए होता यूं है कि जब वो चादर उठाकर पीछे करती हैं तो आग जो है वो उनके कपड़ों को लगने लगी थी, और उनके कपड़े, जाहिर है लड़कियों के कपड़े इतने बारीक और ऐसे होते हैं जिसको आग फौरन पकड़ती है, और खुदा न खासा अगर वो आग उनके कपड़ों को लग जाती, यकीन जाने सिर्फ चंद सूतर का फासला था, इंच का भी नहीं, चंद सूतर का फासला था, और वो आयजा खान जो है इस बड़ी मुसीबत से बच गई हैं। अगर वो आग उनको लग जानी थी तो यकीन जाने कि आयजा खान की जिंदगी बदल के रह जानी थी। मतलब मैं बड़ा खौफजदा हुआ जब वो मैंने सीन देखा, मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा यार आयजा खान बच गई हैं। खैर आने वाले एपिसोड में आप ये सीन देख भी लेंगे और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि अगर ये आग खुदा न खास्ता आयजा खान को लग जाती तो वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। बहरहाल अगर आप आयजा खान से मोहब्बत करते हैं, आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमजा अली अब्बासी जो कि 10 साल बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे हैं, तो आपको ये बताता चलूं कि हमजा अली अब्बासी ने इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था और उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह करने लगे थे और साथ में वो पीटीआई के भी बहुत बड़े सपोर्टर बन गए थे। लेकिन शायद इमरान खान और ये जो मामलात आपको पता है चल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि मुझे दोबारा इंडस्ट्री ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? हमजा अली अब्बासी को सियासत में जाना चाहिए था या फिर इंडस्ट्री में आना चाहिए था वापस? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे डक्की भाई के बारे में। डक्की भाई जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग उनसे नफरत भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे हसद भी करते हैं, और उनकी जो तरक्की है उन चीजों को देखकर वो कहते हैं कि तरक्की हासिल कैसे की, शुरू क्या किया था, और कैसी गालियां और कैसे गंदे व्लॉग्स और ये वो सब कुछ कहते हैं। ये बातें सब कुछ अपनी जगह, लेकिन चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में उनसे ज्यादा कोई कामयाब यूट्यूबर नहीं है जिसके इतने ज्यादा व्यूज आते हो। डक्की भाई के घर आ जाती है पुलिस और सिक्योरिटी और वहां पर उनको वार्न किया जाता है कि अगर आप लोगों ने अपने फैंस को मना ना किया, जो कि दीवारें फलांग फलांग कर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और सबसे ज्यादा दिन में 200 से 300 लोग आपका पता करने आते हैं, अगर आप लोगों ने उनको मना ना किया तो आपको आपके ही घर से निकाल दिया जाएगा। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका और डक्की भाई ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने लोगों से, अपने चाहने वालों से कहा है कि यार मैं जहां मिलूं मेरी पैंट भी उतार लो भाई, मेरे साथ जिस तरह से मर्जी मिलो, और मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ सेल्फी बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन अभी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे घर ना आए। आप लोग दीवारें फलांग कर आते हो, मैं आपसे सेल्फियां भी बना लेता हूँ, वीडियोज भी बनाता हूँ, लेकिन बात यह है हमारे घर के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज है और वो नहीं चाहते कि उनके घर के आसपास लोग इस तरह से जमा हो, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। और सिक्योरिटी वाले ये कहते हैं कि जब हम लोगों को नहीं आने देते तो लोग दीवारें फलांग कर अंदर आने लग गए, और ये बात बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे ही एक मामला विलेज फूड सीक्रेट के मुबशिर सिद्दीक के साथ भी पेश आया था। तो मुबशिर भाई ने भी वीडियो बनाई थी और कहा था कि मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर ये बात कहता हूं कि प्लीज हमारे गांव में मत आया करें, मुझसे मिलने मत आया करें, क्योंकि यहां पर जो यूट्यूबर आता है वो इस चीज का एहसास नहीं करता कि गांव की औरतें भी उसी के व्लॉग में आ रही होती हैं, गांव के लोगों की वो वीडियोस भी बना रहे होते हैं, और गांव की स्कूल की बच्चियों की वीडियो भी वो बनाकर अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग जो हैं वो हमसे लड़ने आ गए थे और हमने लोगों से हाथ जोड़कर माफिया मांगी थी और कहा था कि आज के बाद हमारे गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं आएगा। लेकिन उन पर उस वक्त तनकीद इसलिए ज्यादा होने लग गई कि वहां पर बाहर के जितने लोग थे जो अमीर थे, जो कि आउट ऑफ कंट्री से ताल्लुक रखते थे, ओवरसीज पाकिस्तानी हो गए या गोरे हो गए, वो जब आते थे तो उनके साथ प्रॉपर शूट किया जाता था। इसलिए लोगों को मुबशिर सिद्दीक भाई से ये बहुत बड़ा इतराज था और बहुत ज्यादा उनसे नाराजगियां भी हुई, और इसी तरह से डक्की भाई के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि भाई देखें, आप किसी के भी फैन हो सकते हैं, किसी से भी इतना प्यार कर सकते हैं, और अगर आप किसी से मिलकर समझते हैं कि उसके साथ सेल्फी बनाकर उसके ऊपर थंबनेल में किसी और की शक्ल लगाकर या फिर उसको अपने व्लॉग में लाकर समझते हैं कि अगर आपको तरक्की मिल जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जो इस चीज पर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि हम कहीं भी किसी जनाजे पर भी होते हैं तो लोग हमारे साथ सेल्फीज बनाने लग जाते हैं, लोग हमारे साथ मिलने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि हम कहाँ खड़े हैं, किस मामले में आए हुए हैं, और लोगों को अपनी पड़ी होती है। बहरहाल इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है, लेकिन मैं डक्की भाई की इस बात से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत ही
पोलाइट तरीके से अपने लोगों को मना किया कि यार जितने भी लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं बाहर कहीं भी आपको मिल लूंगा, कहीं भी मिल लूंगा, फ्लाइट लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन प्लीज हमारे घर मत आए। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे लाइबा खान के बारे में। हसन चौधरी ने लाइबा खान को अपने शो में बुलाया और उस शो में उनसे एक ऐसा सवाल किया जिसकी वजह से एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि फहद मुस्तफा ने टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स के बारे में क्या कहा था और उसको लेकर अभी तक वो एक फाइट सी चल रही है। फहद मुस्तफा को हर टिकटॉकर, हर यूट्यूबर जवाब देता जा रहा है, लेकिन हसन चौधरी ने लाइबा खान को अपने शो में बुलाकर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। उन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले अवार्ड शो के हवाले से आपने कहा था कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि अपकमिंग स्टार के तौर पर आप ऐसे लोगों को अवार्ड दे देते हैं जिनको एक्टिंग की अलिफ बे नहीं आती। मैं बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों बयान दिया था, तो उन्होंने कहा था कि उन टिकटॉकर्स को अवार्ड दे दिया जाता है जिनको कुछ भी नहीं आता, जो सिर्फ लिपसिंग करते हैं। किसी भी गाने में स्लोमो बना लिया या फिर लिपसिंग कर ली तो उसको आप एक बहुत बड़ा स्टार बनाकर पेश कर देते हैं और कहते हैं बहुत बड़ी स्टार है। उसके अंदर टैलेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर आपने किसी को अवार्ड देना भी है तो किसी क्रिएटर को दें, चाहे वो टिकटॉकर हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखता हो। बेसिकली ये अवार्ड उस वक्त रबीका खान को दिया गया था और आप सभी को पता है कि रबीका खान कोई क्रिएटर नहीं है और ना ही वो कुछ ऐसा कंटेंट बनाती है। उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त उनको अवार्ड दिया गया था। सिर्फ उस वक्त उनके व्यूज टिकटॉक पे बहुत ज्यादा आते थे और उनके लाइक्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से उनको अवार्ड दे दिया गया था। और इसके जवाब में हसन चौधरी ने कहा कि टिकटॉक तो आप ही बनाती हैं और फिर इसका मतलब यह है कि आपको भी कोई अवार्ड नहीं देना चाहिए क्योंकि आप भी अपने टिकटॉक पर कोई क्रिएशन नहीं करती बल्कि बीटीएस लगाती है, बिहाइंड द सीन्स लगाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अवार्ड्स आपको मिले हैं वो भी नहीं मिलना चाहिए। तो वो कहती हैं कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, परफॉर्म करती हूँ और परफॉर्म करते हुए मेरे जो सीन्स होते हैं या बीटीएस होते हैं वो मैं लगाती हूँ, मैं प्रॉपर एक एक्टर हूँ। आप कम से कम उसको अवार्ड तो ना देना जो क्रिएटर ही नहीं है, जिसे एक्टिंग नहीं आती या फिर कोई अपना कंटेंट नहीं बनाता, उसको अवार्ड क्यों दे देते हैं जो सिर्फ स्लोमो करता है या फिर लिपसिंग करता है। एक इंसान ना कोई कंटेंट बना रहा है, ना एक्टिंग, ना सिंगिंग, ना कोई किसी किस्म का टैलेंट नहीं है, तो बगैर टैलेंट के अवार्ड क्यों मिला? कि एक इंसान को मिला उसमें कोई खूबी तो हो। जो सिर्फ टिकटॉकर है, जो लिपसिंग कर रहा है, उसका क्या कंटेंट है? जो डिजर्विंग होते हैं उनको भी मिलना चाहिए। ये लड़ाई और ये जेलसी अब सामने नहीं आ रही बल्कि ये काफी अरसे से चल रही है। और जैसा कि आप सबको पता है कि फहद मुस्तफा ने भी कहा था कि ये कैसी कमाई है और ये कैसी शोहरत है, आप अपने घर की माएँ बहनें उनको शो करके उस पर व्यूज हासिल कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर वाकई सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि अगर कोई आवाम में से ये बात करता ना तो अच्छी लगती। आवाम ये बात कहती ना कि अपनी माएँ बहनें बेटियां शो करके वीडियोस बनाते हैं और व्यूज हासिल करते हैं तो समझ में आता। लेकिन एक ऐसा बंदा कह रहा है जो खुद इसी फील्ड में है, जो अपनी माँ बहन बेटी को लेकर आता है सेट पर, इनकी बीवी आती है सेट पर, इनके साथ शो में आती है, तो वो कहते हैं कि इस तरह के बंदे को ये बात करनी जेब नहीं देती थी। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या टिकटॉकर या फिर यूट्यूबर्स को अवार्ड मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। यकीन जानो मेरी तबीयत बड़ी सख्त खराब है, लेकिन क्या करें यार, काम तो करना है। उनको लगता है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो कोई मतलब उनके अंदर टैलेंट नहीं है। सर्दियों में पसीने आ रहे हैं भाई। चलो बहरहाल उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।